हेलो। यस मैम। यस यस बेटा, मैम। गुड आफ्टरनून। गुड तो आफ्टरनून मैम। आपका जो टॉपिक था डेप्ट मार्केट का, यूनिट सेकंड का ही टॉपिक है। डेप्ट मार्केट मींस जब भी कोई भी कंपनी जब लोन लेती है, डेप्ट्स लेती है, दिस इज नोन एज डेप्ट मार्केट। उसी को हम डेप्ट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो द गवर्नमेंट नीडेड a large amount of money for the investment in development। जो गवर्नमेंट होती है, इट्स नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, द गवर्नमेंट रियलाइज द नीड्स ऑफ एन efficient and healthy debt market। तो इसके लिए गवर्नमेंट को रियलाइज होता है, रिलीज द नीड्स ऑफ एन efficient and healthy debt market। The Reserve Bank of India made efforts to develop the government securities made, but it's too strange. The private corporate debts market and public sector undertaking bonds debt market have yet not fully developed in terms of volumes and liquidity। That is the debt market, उसी को हम debt market बोलते हैं। Its meaning is the debt market is a market where the debt instruments are to be traded, that is known as debt market, okay। जहाँ पे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, दैट इज नोन एज द डेप्ट मार्केट, उसी को हम डेप्ट मार्केट बोलते हैं। इट इज अ डेप्ट मार्केट विच कैन प्रोवाइड रिटर्न्स commensurate to the risk। A variety of instrument match the risk and liquidity preferences of the investors, greater safety and lower violation instabilities are there। First one is government securities market, next one is corporate private corporate debts market is there, next one is public sector underwriting bonds market is there, okay। फर्स्ट जो पॉइंट है गवर्नमेंट मार्केट सिक्योरिटीज, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डेप्ट मार्केट। प्राइवेट कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट इज देयर। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स मार्केट, ओके। तो दीज आर नोन एज द डेप्ट मार्केट, इन्हीं को हम अंदर का भी, आपका भी गेट अच्छे से लगा। उसके बाद में आता है आपका characteristics of the debt market। What are the characteristics? Debt market is a market where fixed income securities, various types and features are to be issued and traded, that is known as debt market। Where the fixed income securities and various types and features are to be issued and traded, that is known as debt market। What are the characteristics of the debt market? Debt market के कौन-कौन से characteristics हैं? The debt market has a number of characteristics, हैं जैसे such as trading in long term debt market instruments, ठीक है। trading in long term debt instrument का मीनिंग क्या होता है? The debt market facilitate टीज प्रोवाइड करता है द ट्रेडिंग इन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ट्रेडेड करने में, यूजुअली मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा कट टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म डेप्ट मार्केट, इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म डेप्ट मार्केट बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका रेगुलेशंस आर देयर। द आरबीआई रेगुलेट्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आरबीआई होता है वो रेगुलेट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है। और विच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो? which government securities is to be traded? Corporate debt market comes under the purview of the Securities Exchange and Board of India। नेक्स्ट आता है आपका जो फिक्स्ड इनकम आती है। इन द डेप्ट मार्केट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स आर टू बी ट्रेडेड। जो डेप्ट मार्केट होता है वहां पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडेड आर देयर। नेक्स्ट आता है आपका segmentations are there। The debt market has many segments, बहुत सारे segments होते हैं debt market के, which can be classified into various categories, जो कि classified की गई हैं various categories में on the basis of instruments के basis पे, and their tenure, marketabilities, ownership, etc. And these are known as the segmentations of a debt market। Next one is the direct trading is there। direct जो trading होती है, the debt market outright purchase and sales of securities take place within another, responses are traded, that is known as the direct trading। Next one is the
participants are there. Participants में आपका आता है the participants in the debt market are a small number of large players which has resulted in a debt market, that is known as the participants. Next one is diversified market is there. The debt market has become more diversified with the entry of new participants. Diversified market का means होता है जो debt market होती है have become more classified with the entry of new participants such as high new worth individuals, cooperative banks are there, large cooperative mutual funds and insurance companies are there. Next one is the variety of instruments. कौन कौन से instruments का use किया जाता है debt market में? Which instruments are used in a debt market? Debt market में कौन से instruments use किए जाते हैं? ठीक है. First one is instrument is to be used in a debt market. Variety of instruments. Various types of instruments are traded on a debt market. Instruments to match the risk and liquidity preference of the investors. That is known as the variety of instruments that is to be used in a debt market. Next आता है आपका importance of debt market. कौन कौन सी importance है आपके debt market के? Financing the development activities of the government. Next आता है transmission of monetary policies. Low cost borrowings are there. Financing the development activities of the government. The debt market provides funds to the government for the development and infrastructure projects are there, that is known as financing the development activities of the government. उसके बाद आता है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज. मॉनेटरी जो पॉलिसीज है उनसे रिलेटेड जो ट्रांसमिशंस होते हैं. द डेप्ट मार्केट इज ऑल्सो जो डेप्ट मार्केट है इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द point of view of transmission of monetary policies. It's also create an interface between the monetary policies and physical policies of the transmissions. Next आता है आपका low cost borrowings are there. लो कॉस्ट बोरोइंग्स में आता है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. उसको कितना लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अचीविंग इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए. द डेप्ट मार्केट डील्स इन अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. जो डेप्ट मार्केट है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करती है? डीलिंग करती है. ठीक है. Long-term instruments used in efficient debt market helps in reducing the borrowing cost of the rate of interest is there. Next आता है आपका कि fourth point है reducing pressures and infrastructure financing. A well-developed debt market helps in making the power of an instrument financing by providing greater financial services. नेक्स्ट आता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो डेप्ट मार्केट है उसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो एफिशिएंट होना जरूरी है. सेफ्टी इज देयर. द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर an important medium for investing participants for the risk of investment. नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड शेयर इन जीडीपी. ट्रांसपेरेंसी मतलब जो डेप्ट मार्केट फैसिलिटेट एफिशिएंट फाइनेंसिंग intermediaries and transparency by using market mechanisms there. Shares in GDP का means आता है Indian debt market account for approximately 30% of the GDP is their share in GDP. Next आता है participants in a debt market. Participants in a debt market आता है central and state government. First आता है primary dealers are there, cooperatives are there, public sector undertakings are there, mutual funds, banks and provident fund. First आता है central and state government. The central government realize fund through the issue of debts, securities and the treasury bills जो होते हैं to finance the deficit of the budget and other short term and long term financial requirements of the central and state government. Next आता है आपका primary dealers are there, PDS जिसे हम बोलते हैं. प्राइमरी डीलर्स आर द मार्केट मेकर्स. जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो कौन होते हैं? मार्केट मेकर्स होते हैं. दे आर अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो अपॉइंट किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एंड परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज. और वो परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज नोन एज प्राइमरी डीलर्स आर देयर.
नेक्स्ट आता है कॉपरेटिव्स. कॉपरेटिव्स आर बोथ इश्यूअर एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द डेब्ट मार्केट. Corporates are both issuers and investors of the debt market. Next आता है आपका public sector undertakings. अब public sector undertakings में क्या आता है? PSUs issue tax-free and taxable bonds to meet long-term and working capital requirements. That is known as public sector undertaking. Next one is banks. Provident funds are there. Banks are the major investors in the government securities. जो बैंक होती है वो मेजर इन्वेस्टर्स होती है इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में जो होती है. बोथ वो जो कि वर्क करता है बैंकर्स, बैंक जो वर्क करती है वो एज ए लैंडर भी वर्क कर रही है और एज ए ब्रोकर्स भी वर्क करती है इन द कॉल मनी मार्केट. नेक्स्ट आता है जो 7th पॉइंट है वो आपका प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड आर ऑल्सो ए लार्ज इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट. जो प्रोविडेंट फंड है वो एक तरीके से लार्ज इन्वेस्टर्स हो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स के अंदर. ठीक है, दे आर नॉट एक्टिव ट्रेडर्स. ये एक तरीके से एक्टिव ट्रेडर्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका जो ट्रस्ट होते हैं. ट्रस्ट आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. जो ट्रस्ट होते हैं वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. आर लार्ज इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स. जो कि लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर और बॉन्ड्स के ऊपर. They are also not active traders in the market, that is known as the trustees. Next आता है foreign institutional investors are there. Foreign institutional investors में आते हैं government has allowed to invest the government securities and cooperative bonds, that is known as foreign institutional investors. Next आता है आपका types of instruments traded in the debt market. Which types of instruments are to be traded in a debt market? Debt market में कौन कौन से instruments trade किए जाते हैं? The debt market segments में आते हैं public sector bonds, private sector bonds, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में फर्स्ट आता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स है आपका कूपन बियरिंग बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, PSUs बॉन्ड होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं. उसके बाद में आते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं. और आप प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे डिबेंचर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट होते हैं. तो वन बाय वन करके मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट आता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स. जीरो कूपन बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स इज ऑल्सो नोन एज जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड. इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं. डू ऑफ any coupon rates of interest, they are sold at a discount from their maturity value. The difference between the face value of the bonds and the acquisition cost of the given zero coupon bonds are there. इन्हीं को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं जिसमें जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी बोला जाता है और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना पड़ता. डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स में क्या होता है? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो ऑफ द नेचर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स. इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं. दे आर इश्यूड एट ए हैवी डिस्काउंट और उन्हें हम हैवी डिस्काउंट पे भी क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं. दे आर ऑल्सो एट ए हैवी डिस्काउंट आर repayable at the face values, that is known as the deep discount bonds. उसी को हम deep discount bonds बोलते हैं. They are issued by the public sector. ये issue किए जाते हैं public sector के through undertaking bonds market segments of the debt market. उसके बाद में आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स किन्हें बोला जाता है? फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स में आता है दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट सेगमेंट्स में. नेक्स्ट आता है आपका जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, ट्रेजरी बिल्स इज ए प्रोमिसरी नोट. ये एक तरीके का ट्रेजरी बिल जो होता है एक प्रोमिसरी नोट होता है. ठीक है, promissory note issued by the government a specified period. जो promissory notes होता है
वो इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है स्पेसिफाइड पीरियड में, एक प्रॉपर स्पेसिफाइड पीरियड में, यूजुअली फॉर लेस देन अ ईयर। उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है लेस देन अ ईयर होता है। द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है अमाउंट को पेमेंट करने में, मेंशन इन द ट्रेजरी बिल्स, जो कि मेंशन किया जाता है ट्रेजरी बिल में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल पेपर्स आर देयर। द कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन of a fixed maturity bearing interest or issue at a discount, that is known as commercial bills. Commercial papers are there given to a company in exchange for the promissory note, in exchange of the promissory note, that is known as the commercial bills. Commercial papers are there. A commercial paper is a short term unsecured loan. जो कमर्शियल पेपर होता है वो होता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स होता है ऑफ द फिक्स्ड मैच्योरिटी bearing interest or issued at a discount given to the company in exchange of promissory note which is negotiable by the endorsement and delivery, that is known as commercial paper. Certificates of deposit में क्या आता है? These are issued by the bank and financial instruments. Certificates of deposit में आता है, these are issued by the banks and financial instruments in the private sector bonds. Market segments of the debt market, certificates of deposit are marketable receipt of fund in the form of promissory notes, that is known as certificates of deposit. उसी को हम certificates of deposit बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर, डिबेंचर इशू किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। ठीक है। मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट, द डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट बाय द कंपनी लाइक अ प्रोमिसरी नोट, डिबेंचर, रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिट सिक्योरिटीज आर देयर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स। गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स क्या बोलते हैं? दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द पब्लिक, ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो कि पब्लिक के थ्रू इशू किए जाते हैं। ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द पब्लिक, ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो पब्लिक के थ्रू इशू किए जाते हैं। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स कौन से होते हैं? दीज बॉन्ड आर इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट. Such bonds has government banking and regard to the payment of interest and repayment of the principal's amount. नेक्स्ट आता है आपका 9th पॉइंट, PSUs, टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स। PSUs आर परमिटेड टू इशू टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। जो PSUs होते हैं वो इशू करते हैं टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स। जो कि टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसे इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि डेब्ट मार्केट इज देयर। सेकेंडरी मार्केट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ऑफ द डेब्ट मार्केट में फर्स्ट है आपका marketing representative, equity shares, promoters placement, current guidelines are there for the placement of the guidelines. उसके बाद में आता है आपका secondary segments of debt market. Secondary segments of the debt market में क्या क्या है? Secondary segment of the debt market में है आपका the debt instruments are traded on the सेंट्रल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं OTCEI, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोला जाता है BSE, एंड द डेब्ट मार्केट WDM सेगमेंट ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. द डेब्ट मार्केट इन a country to provide an electronic trading for cooperative गवर्नमेंट्स एंड डेब्ट सिक्योरिटीज. नेक्स्ट आता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं NSEs, set up the separated segments for trading in the debt known as the wholesale debt market, जिसे हम WDM बोलते हैं, wholesale debt market segments. उसके बाद में आता है wholesale debt market WDM segments. The WDM segments provide facilitates and institutional investors to trade in the
institutions such as government institution, public sector undertaking, bonds, units of mutual fund, certificates are there. तो ये आपका कंप्लीट हो गया है डेप्ट मार्केट, जहाँ पे भी फैसिलिटीज डेप्ट के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं दैट इज नोन एज डेप्ट मार्केट, उसी को हम डेप्ट मार्केट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताइए। डेप्ट मार्केट का मीनिंग आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इशू करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है अमाउंट को, उसी उसको इन्वेस्ट जब करती है तो डिफरेंट डेप्ट मार्केट वर्कआउट की जाती है, वर्क करती हैं इसके लिए। डेप्ट मार्केट के अंदर देखिए, आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था जीरो बजटिंग कूपन्स होते हैं, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में पार्टिसिपेट किया जाता है। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्ट मार्केट भी आपको ऑलरेडी करवा दिया है मैंने, एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। बट आर द डेप्ट मार्केट सेगमेंट, डेप्ट मार्केट हैज इमर्ज कंपनीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट होती है इसके अंदर, प्राइवेट कोऑपरेटिव डेप्ट मार्केट होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स मार्केट होती है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं डेप्ट मार्केट के। फर्स्ट है आता है ट्रेडिंग इन लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हम ट्रेड करते हैं लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को। उसके बाद में आता है रेगुलेशंस क्या होती हैं, फिक्स्ड इनकम, सेगमेंटेशन, डायरेक्ट ट्रेडिंग, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डाइवर्सिफाइड मार्केट, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द डेप्ट मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है डेप्ट मार्केट का। फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंसिंग करती है डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो होती है गवर्नमेंट की उसमें। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उनके ऊपर ट्रांसमिट करती है। लो कॉस्ट बोरोइंग्स होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर अचीविंग इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए। एफिशिएंट जो रिसर्च होती है, सेफ्टी होती है, ट्रांसपेरेंसीज होती है, शेयर्स इन जीडीपी होता है। ठीक है, तो दैट आर नोन एज द डेप्ट मार्केट। पार्टिसिपेंट्स इन डेप्ट मार्केट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके डेप्ट मार्केट के? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है आपकी डेप्ट मार्केट के अंदर। The central government raises funds through the issue of dated securities and treasury bills to finance the deficit of the budget and other short-term and long-term financial institutions. नेक्स्ट आता है आपका जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं। प्राइमरी डीलर्स आर द मार्केट मेकर्स। जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो एक तरीके से मार्केट मेकर्स का वर्क करते हैं। corporates are there, corporates are both issuers and investors of the debt market। कॉर्पोरेट बोथ ही होते हैं, इशूअर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स ऑफ द डेप्ट मार्केट। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टर्स इन द डेप्ट मार्केट। उसके बाद में आता है बैंक्स, बैंक्स आर द मेजर इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक्स जो होती है मेजर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जिसमें लैंडर्स भी वर्क करते हैं और बोरोवर्स भी वर्क करते हैं। प्रोविडेंट फंड जो होता है आर ऑल्सो ए लार्ज इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज नोन एज द प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रस्टीज, ट्रस्टीज एंड charitable institutions are large investors in the government securities and bonds, that is known as the trustees। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट हैज अलाउड foreign institutional investors to invest in government securities and corporate bonds में जो इन्वेस्ट करते हैं। types of instruments traded in a debt market, which types of instruments are traded in a debt market? फर्स्ट आता है डेप्ट मार्केट सेगमेंट्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में आता है आपका फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहले जो डेप्ट मार्केट है उसमें आपका फर्स्ट जो पॉइंट है कूपन बियरिंग बॉन्ड्स आता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स आता है, ट्रेजरी बिल्स आता है और आपके फ्लोटिंग रेट्स बॉन्ड्स आते हैं। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट गारंटी बॉन्ड्स, डिबेंचर, पीएसयू बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है,
उसके बाद में आता है डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ये सारे के सारे आते हैं आपके डेब्ट्स मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वर्कआउट करते हैं। दे आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट फ्रॉम देयर मेच्योरिटी डेट। ठीक है, वो सोल्ड किए जाते हैं अपनी मेच्योरिटी डेट पे। उसके बाद में आता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, किन्हें बोला जाता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आते हैं। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर आल्सो ऑफ द नेचर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये भी जीरो कूपन बॉन्ड्स के नेचर के ही होते हैं। दे आर इशूड एट ए हायर डिस्काउंट, बहुत ज्यादा हाई डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं। एंड आर रीपेबल एट ए फेस वैल्यू, और जो कि रीपेमेंट किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, दे आर इशूड एट ए हैवी डिस्काउंट एंड आर repayable at the face value, that is known as the deep discount bonds। उन्हीं को हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के बाद में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स किन्हें बोला जाता है, दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे बॉन्ड्स जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट्स एंड प्राइवेट market debt segments of the debt market। ठीक है, floating rate bonds are bonds wherein the interest rate is not fixed। ऐसे बॉन्ड्स जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है उसी को हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अ ट्रेजरी बिल इज ए प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट एज ए स्पेसिफाइड पीरियड। ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है इज ए प्रोमिसरी नोट, एक तरीके का जो प्रोमिसरी नोट होता है इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। बाय स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यूज किया जाता है, यूजुअली फॉर लेस देन अ ईयर, एक साल से कम के लिए। द गवर्नमेंट promises to pay the amount mentioned in the treasury bill। जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉमिस करती है टू पे द अमाउंट, ऐसे अमाउंट को पेमेंट करने के लिए मेंशन इन दैट, जो कि ट्रेजरी बिल में मेंशन होते हैं। कमर्शियल पेपर्स किन्हें बोला जाता है, अ कमर्शियल पेपर इज a short term unsecured viewed of a fixed maturity bearing interest or issued at a discount, उसी को हम बोलते हैं कमर्शियल पेपर। एक तरीके का शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन ऑफ द फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, किन्हें बोला जाता है। दीज आर इशूड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है ये इशूड बाय द बैंक, जो कि बैंक के थ्रू इशू किया जाता है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इज द प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आता है आपके जो डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर आर इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं वो इशू किए जाते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के थ्रू मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट। अ डिबेंचर इज एन acknowledgement of the debt by a country that is known as the debentures। गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स किन्हें बोला जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर। ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू इशू किए जाते हैं मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट। सच बॉन्ड्स हैव गवर्नमेंट बैकिंग। ये जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें गवर्नमेंट बैंकिंग एज अ regards to the payment of interest and repayment of the principal amount। नेक्स्ट आता है आपका जो TSUs, टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स होते हैं। PSUs आर परमिटेड टू इशू टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स कौन से होते हैं डेब्ट मार्केट के। फर्स्ट वन इज पब्लिक प्रोस्पेक्टस, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक प्रोस्पेक्टस में आते हैं पब्लिक इशू थ्रू द प्रोस्पेक्टस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ द फंडिंग। उसके बाद में आता है राइट इशू। राइट इशू इज ऑफर टू एक्सटेंड इन्वेस्टर्स ओनली। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट makes for the debt issue is popular for the cost of raising funds। अभी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? हेलो No, ma'am.
Okay. Ma'am. Okay, your class is over. Okay, beta. I will continue your class on tomorrow. Okay, beta.